Good morning students. Today we are going to discuss about the second part of Lost Spring lesson. So first part में हम लोग साहिब ए आलम के बारे में पढ़ चुके हैं who is a rag picker, and second part में हम लोग मुकेश के बारे में पढ़ेंगे who is a son of bangle maker. So this lesson is very important for your exam point of view, and let's get into the second part. I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. अनीस जंग से मुकेश कहता है. The second part is about the life of Mukesh, who comes from the family of bangle makers. Mukesh lives with his elder brother, bhabhi, father and grandma. Mukesh's father is blind and even his grandfather was blind. Firozabad is quite popular for its glass blowing industry. A staggering 20,000 children are a part of this business, and any law that forbids child labor is brutally ignored here. Also, the working environment and the living conditions are pathetic. They live stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, oobly doors, no windows, crowded families of humans and animals coexisting in a primeval state. अनीस जंग दूसरा भाग में मुकेश के जीवन के बारे में बताती है, जो चूड़ी बनने वालों के परिवार से आता है. मुकेश अपने बड़े भाई, भाभी, पिता और दादी के साथ रहता है. मुकेश के पिता अंधे हैं और उनके दादा भी अंधे थे. फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स के लिए काफ़ी फेमस है. एक चौंके देने वाले बात है कि 20,000 बच्चे इस काम का हिस्सा है और बाल श्रम के प्रतिबंधित करने वाले किसी भी कानून की यहाँ क्रूरता से अनदेखी की जाती है. साथ ही काम करने का माहौल और रहने की स्थिति बहुत दयनीय है. कचरे से भरी दुर्गंध वाली गलियों में रहते हैं बैंगल मेकर्स, एंड बहती डगमगाते दरवाज़ों के साथ बने कोई खिड़की नहीं ऐसे घरों में रहते हैं. ह्यूमन और एनिमल्स एक साथ एंशिएंट लोग जैसे रहते हैं. Now next slide. Children live in dingy cells and work around hot furnaces that make them blind when they enter adulthood. There was a young girl by the name of Savita. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. Since they are weighed down by debt, they cannot think or find any way to escape this trap. The politicians, policemen, middlemen, and bureaucrats obstruct their way of progress. Most women in such families think that this is their fate and just follow the tradition. But Mukesh is very different from the rest of the folks there. He has dreams of becoming a motor mechanic. The garage is quite far from his house, but he shall walk. So फिरोजाबाद में बच्चे डार्क एंड डर्टी, दैट मीन्स अंधेरे से और गंदगी से भरा हुआ कमरों में और गर्म भट्टियों के आसपास काम करना पड़ता है. जब एडल्टहुड में प्रवेश करते ही उन्हें अंधा बना देती है. एंड सविता नाम की एक लड़की के बारे में अनीस जंग कहती है, एक दिन अचानक उसे एहसास होगा जब उसका सिर पर लाल पर्दे से ढका होगा. चूंकि वे कर्ज के बोझ तले उनके ऊपर है, एंड इसलिए वे इस जाल से बचने के लिए ना तो सोच सकते हैं और ना ही कोई रास्ता खोज सकते हैं. राजनेता, पुलिसकर्म और मिडलमैन और हायर ऑफिसर्स उनकी प्रगति के रास्ते में बाधा डालते हैं. ऐसे परिवारों में ज़्यादातर महिलाएं सोचते हैं कि उनकी किस्मत है और परंपरा का पालन करते हैं. लेकिन मुकेश वहाँ के बाकी लोगों से काफ़ी अलग है. उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना है. गैरेज उनके घर से काफ़ी दूर है, लेकिन वह चलेंगे. Now let's get into the literary devices. Literary devices, a device which is used by author to make a sentence impressive, effective and beautiful. And these devices are also known as figure of speech. Now first one, hyperbole. Hyperbole means when a thing is compared to another thing with more exaggeration. बढ़ा चढ़ा के किसी सेंटेंस को या लिमिट से ज़्यादा बोला तो उसको हम लोग hyperbole बोलते हैं. Now first sentence, garbage to them is gold. उनके लिए कचरा सोना है.
तो गार्बेज को गोल्ड जैसे कंपेयर किया है, विच इज़ लिमिट से ज़्यादा बोला है, दैट मीन्स गोल्ड इज़ वेरी प्रेशियस एंड वैल्यूबल, सो दैट्स वाई दिस इज़ हाइपरबोली. स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड, सोने के लिए चक्कर लगा रहे हैं. तो कोई भी गोल्ड के लिए, सोने के लिए चक्कर नहीं काटते. चक्कर काटने से गोल्ड नहीं मिलने वाला, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लिमिट से ज़्यादा बोला है, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो हाइपरबोली. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है चीर फाड़ करना. सालों से इन लोगों ने एक कला को हासिल कर लिया है, इसका मतलब. लेकिन ये कला थोड़ी है गार्बेज को रैग पिकिंग करना, दैट मीन्स कचरा को बिनना. बिल्कुल कला नहीं है. इट्स नॉट अ स्किल. दैट्स वाई ये भी लिमिट से ज़्यादा बोला है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो हाइपरबोली. नाउ कमिंग टू आयरनी. सेकेंड वन, आयरनी मीन्स व्हाट? इन अ सेंटेंस यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट बट इट डज नॉट मीन. जो कहते हैं वो है नहीं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग आयरनी बोलते हैं. साहिब ई आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. साहिब ई आलम जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान, इधर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है. बिकॉज साहिब ई आलम जो है वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स उसका मीनिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है. रियल में क्या है, वो एक रैग पिकर है. सो दैट्स वाई दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे मीन. उनका मीनिंग अलग है एंड इसका रियलिटी अलग है. दैट्स वाई दिस इज आयरनी. नाउ नेक्स्ट, एलिटरेशन. Alliteration means a sentence having the same first consonant sound words. जब किसी वाक्य में 2 या 3 वर्ड्स में consonant sound है तो उस वाक्य को या उस सेंटेंस को हम लोग alliteration बोलते हैं. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. तो इसका मतलब क्या है? या few में F is consonant and fly में F is consonant again consonant and फिरोजाबाद में भी F is consonant. So 3 consonant sounds are used here. That's why this sentence is alliteration. Now next, simile. Simile means when two things are compared, two different things compared by using as or like, then it is known as simile. As your hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. जैसे जैसे आपके हाथ मशीन के जैसे यांत्रिक रूप से चलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है सविता. तो ऐसे अनिसजन कहती है इस लेसन में. सो हियर हाथों को, सविता के हाथों को टोंग्स, दैट मीन चिमटा जैसे, मशीन के चिमटा जैसे कंपेयर किया है. जैसे मतलब लाइक यूज़ किया है कंपेयर करते समय. 2 थिंग्स और कंपेयर, हैंड्स को एंड टोंग्स ऑफ मशीन को, बट यूजिंग लाइक और एज. अगर लाइक या एज है तो उस सेंटेंस में हम लोग उसको बोलते हैं सिमिली. सो दिस इज सिमिली. द नेक्स्ट, मेटाफर. व्हेन 2 थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड, अगर किसी दोनों चीज़ों को हम लोग डायरेक्टली कंपेयर किया तो, जैसे लाइक या एज को नहीं यूज़ करेंगे हम लोग इसमें. दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लाइड सिमिली भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें लाइक या एज यूज नहीं किया जाता. सो एग्जाम्पल्स आर ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, उजाड़ हवा में डूब गया. तो ये सीधी सी बात है, डायरेक्टली कंपेयर किया है drowned and desolation को. So that's why this is again metaphor. Next, web of poverty, गरीबी का जाल. तो ये भी सीधी सी बात है, गरीब जो है, गरीबी जो है वो एक जाल जैसा है. Again 2 things were compared without using any like or as. That's why it is implied simile, which is also known as metaphor. The next, antithesis. So antithesis means oppose. Anti means oppose करना. So इसमें meaning of a person or thing that is directly stated as opposite
ऑपोजिट्स यूज किया जाता है इस सेंटेंसेस में. लाइक एग्जाम्पल, सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. मेटाफोरिकली सीमापुरी दिल्ली की परिधि पर एक जगह है, राइट, बट लेकिन इसे मिलों के दूर लाक्षणिक रूप से है. सो सीमापुरी अलग है, दिल्ली अलग है, दोनों आसपास ही रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बहुत दूर है दोनों, बिकॉज सीमापुरी में पूरा रैक पिकिंग होता रहता है एंड दिल्ली में लग्जरियस लाइफस्टाइल है. सो दैट्स वाई अगेन दिस प्लेसेस आर completely opposite and they are compared oppositely. They are. So meaning of these places are completely alag. That's why this is antithesis. Next, for the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है एंड बड़ों के लिए यह जीवित रहने का एक साधन है. यह मीन्स दिस इज गार्बेज. गार्बेज को चिल्ड्रन, बच्चों को गार्बेज जो है वो रैप्ड इन वंडर, वो एक आश्चर्य की लिपटा हुआ है, आश्चर्य में लिपटा हुआ है, लेकिन एल्डर्स को ये एक साधन है जीवित रहने के लिए. सो दैट्स वाई गार्बेज को अगेन टू डिफरेंट वेज में, अपोजिंग वेज में कंपेयर किया है. दैट्स वाई दिस इज अगेन एंटीथेसिस. नेक्स्ट, पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मीन्स टू ऑपोजिट फैक्ट्स को कंपेयर करें तो, व्हेन टू ऑपोजिट फैक्ट्स आर कंपेयर्ड together in a sentence, then this is known as paradox. So she still has bangles on her wrist but not light in her eyes. उनकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं, बट लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है. दोनों फैक्ट्स है ऑपोजिट फैक्ट्स, बिकॉज बैंगल्स है, कुछ होना है, लेकिन रोशनी नहीं है आंखों में, दैट मीन्स अंधे हो गए. सो एकदम गम की बात है. सो खुशी एंड गम दोनों के बारे में बताया गया है, टू ऑपोजिट फैक्ट्स के बारे में. दैट्स व्हाई दिस इज पैराडॉक्स. द नेक्स्ट, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स. स्टील कैनिस्टर का प्लास्टिक की थैली जो है, स्टील कैनिस्टर भारी लग रही है, जैसे वह अपने कंधों पर इतना हल्का ले जाता था. एक्चुअली जब वो साहिब ई आलम के बारे में बताया गया है इधर, एंड वो जब खुशी से रैक पिकिंग कर रहा था, उनको प्लास्टिक बैग कितना भी भारी हो वो हल्का लगता था, ये भी फैक्ट है. अब वो टी स्टॉल में काम करने लगा, अब उनको स्टील कैनिस्टर कितना भी लाइट वेट हो वो ज़्यादा भारी लगने लगा. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. सो ऑपोजिट फैक्ट्स अगेन और कंपेयर्ड इन वन सेंटेंस. So that's why this is paradox. That's all. With this, your lesson is completed.